So, very good evening, all the participants. Today, we have to study the regulations regarding manner and mode of sale. But before we start, please tell me if you have been appointed as a liquidator and you have to sell the assets. So, before selling, what you will do? That means, what are your duties before sale of the assets? Any idea? Some of these duties we have already read. I'll give you a hint. Number one is valuation. So regarding valuation, what you will do? If you intend to sell the assets, regarding valuation, what actions you will take as a liquidator? I hope my voice is clear. Is it clear or there is some issue? Shruti Pandey ji? Yes, it is clear. Okay. So, what actions you will take? Any idea? By finding the list of the assets from the books of account. Regarding valuation, what you will do? Now, let me give you another hint. You have got the valuation done during CIRP. Now, whether you will go in for another valuation, whether it is required or not, and what are the situations in which this valuation is required. The value is significantly different. Okay. Any other thing? Okay. Actually, we should Any go for other a different. situation? Very good. This is one situation. We should go for different valuation. The reason is CRP time we do going concern method. CIRP time we used to value going concern basis. Now in the liquidation we should do by closure method. Right. Basically, we have to now ascertain the realizable value. During CIRP, we ascertain the fair value and liquidation value. The first question is whether in all situations valuation is required again during liquidation, yes or no? Very simple. According to me, yes. Huh? It is required, yes. No, sir, no. If it will be done in CIRP, then no such another valuation required. But I don't record which regulation is there. Okay. So I think you can read regulation number 35. 35 one says. Thank you, sir. So this is one regarding valuation. Whether any sale can be done during CIRP also. CIRP में भी हो सकता है सेल या नहीं? कुछ आइडिया? भाई देखो वो ऐसे ही पूछने वाला है सवाल एग्जाम में. श्रुति पांडे जी, एनी आइडिया? इफ यू आर देयर. MVS कुमार जी, whether during CIRP sale of assets can take place, yes or no? Yeah, it can take place, yes. It is Right. Is there but any limit? Limit, I do not know, but evaluation method is different because we normally. Right, that is correct. Narinder Patel ji, is there any limit? Yes, sir. Sir, please tell. Sir, question, sir. Question. My question is whether during CIRP sale of assets can take place. If yes, then what is the limit?
Oh. To the extent of a debt outstanding. हम्म Complicated question, sir. Very, very complicated. नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड क्या है, वही वो 10% ऑफ वैल्यू का है ना लिमिट। 10% है सर, 10%। हाँ, क्या लिमिट है वो? और कौन सा सेक्शन है? 10% of 10% of total debt. टोटल डेट नहीं, क्लेम्स। Okay, sorry, sir. Sorry, sir. एडमिटेड क्लेम्स। हाँ, तो वो कौन सा है, वो रेगुलेशन नंबर है, कोई सेक्शन है, क्या है वो? है ना सर? भाई किताब खोलो, देखो। किताब खोल के बताओ। सेल ऑफ एसेट्स आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रेगुलेशन नंबर 29, CIRP रेगुलेशंस। बुक किस किस के पास है? Oh. बुक है हाँ आपके Very, सर, very पास? fast, sir. You are 29 very, very 1, fast. 29 में हाँ 1। हाँ हाँ। Book सही है value सर, of सही all है। assets sold during CARP shall not exceed 10% of total claims admitted by IP। एनी अप्रूवल रिक्वायर्ड बाय COC फॉर 66, दिस? 66%। अच्छा, ठीक है। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का भी चाहिए क्या? नहीं है सर। हम्म। चलिए, ये तो हो गया। अब हम चलते हैं लिक्विडेशन पे। लिक्विडेशन में रेगुलेशन 35(1) क्या बोलता है, पढ़िए एक बार जरा। देखो, 35(1) और 35(2), दीज आर टू रेगुलेशंस। 35(1) says that there could be a situation where valuation might have been done during CIRP, है ना? 35(1) ये बोलता है। 35(2) बोलता है हो सकता है आपने वैल्यूएशन नहीं करवाया हो, या पुराना हो गया, या स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी को लगता है, या लिक्विडेटर को लगता है कि दोबारा वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है, तो दोबारा करवा लो, है ना? और अगर दोनों में सिग्निफिकेंट वेरिएशन है, ये जो वैल्यूएशन करवा रहे हो आप, तो उस केस में आपको क्या करना है? इन दैट केस यू हैव टू टेक दी सिग्निफिकेंट वेरिएशन है, तो क्या होगा फिर? Average of the two. नहीं, एवरेज ऑफ द टू तो CIRP वाले केस में ले लोगे आप। अगर थर्ड सिग्निफिकेंट थर्ड वेरिएशन है, थर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करेंगे सर। वो कह रहा है मीटिंग कराओगे आप, वेयर इन द रजिस्टर्ड वैल्यूअर शैल एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द डिफरेंस टू द कंसल्टेशन कमेटी। CIRP में थर्ड वैल्यूअर अपॉइंट होता है, लिक्विडेशन में थर्ड वैल्यूअर अपॉइंट नहीं होता। ओके सर। लिक्विडेशन में एग्जीक्यूशन क्या सर। होगा कि आप लिक्विडेटर को उसको बुलाओगे वैल्यूअर को कि भैया क्यों डिफरेंस है इसमें। 35(7) बोलता है कि इन केस देयर इज अ डेविएशन ऑफ 25% इन द वैल्यूएशन ऑफ एसेट अंडर सब रेगुलेशन 2। सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है? सब रेगुलेशन 2 बोल रहा है कि आपने लिक्विडेशन में वैल्यूएशन करवाया और उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। थोड़ा सा ना जोड़ करके पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगी बातें ना। ये 35 से शुरू करते हैं, थोड़ा सा ना माहौल बन जाएगा। ये है 35(1). 35(1) तो आपको मालूम ही है। हम्म 35(1) इज रिगार्डिंग CIRP हम्म पीरियड, और 35(2) है ड्यूरिंग लिक्विडेशन। ठीक है। अब चलो, सेल हो गया, ठीक है। एसेट सेल रिपोर्ट में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट, ये भी आ जाएगा आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसोल्ड एसेट्स। अब हम चलते हैं इसके ऊपर, मैनर एंड मोड ऑफ सेल। ये मैनर एंड मोड ऑफ सेल क्या है, लेट अस सी। ये मोड ऑफ सेल है। और मैनर और मोड में फर्क क्या है? एक ही बात है, डिफरेंट है?
different. क्या क्या डिफरेंस है? मैनर क्या होता है और मोड क्या होता है? मोड यानी टाइप, राइट, मैनर और यानी मैनर। प्रोसीजर। ओके, तो हम क्या करते हैं, वी विल स्टार्ट विद रेगुलेशन 32। ठीक है, सेल ऑफ एसेट्स। पहले तो ये देख लें किस किस तरह से सेल हो सकती है। ठीक है, आई थिंक दिस, ये मेरा क्लियर नजर आ रहा है ना आपको? हम्म। हाँ, तो यस। इसमें ये देखिए, रेगुलेशन 32 क्या बोलता है ये? एक मिनट, रेगुलेशन 32 किस किस तरह से सेल हो सकती है? 32 नजर आ रहा है सामने यस आपको? सर। हाँ, हाँ। तो कैसे कैसे सेल हो सकती है बताओ, पढ़ लो ना सामने से। हाँ, स्टैंड अलोन बिजनेस, स्लम सेल, कलेक्टिवली, पार्शियल, गोइंग, स्टैंड अलोन का मतलब क्या है? और सोलली, सोल, ओनली सोल। नहीं, एग्जाम्पल से समझाओ। Stand alone means multiple parts, then we will sold only a single part. ओके, जैसे मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को क्या तोड़ तोड़ के बेचोगे, कैसे करोगे? मतलब समझाओ ना। अगर मान लो आपके पास कंप्यूटर है और स्टैंड अलोन पे बेचना है, तो स्टैंड अलोन का क्या मतलब है? Uh, स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि इंडिविजुअली यू विल बी सेलिंग द एसेट्स। ठीक है जी, क्लियर है? hmm, और hmm. सेल सेट ऑफ Slum एसेट्स, sale means सेट ऑफ एसेट्स कोलेक्टिवली, कोलेक्टिवली का क्या मतलब है? set of assets collectively means whole factory or whole plant will be sold out. Whole plant. जैसे केमिकल प्लांट है या हाँ, फिर अदर वेसल वाला प्लांट है कोई। या कई बार क्या होता है, मान लो कंप्यूटर सेंटर है आपका, तो कंप्यूटर में ये यस। नहीं भाई आप फर्नीचर अलग बेचोगे, कंप्यूटर अलग बेचोगे, सीपीयू अलग बेचोगे, वो सारा डेट आप वो हाँ, पूरा एज यूनिट बेच दोगे, है ना? डेटा सेंटर, सच ए हाँ, डेटा क्योंकि सेंटर। अगर आप उसको तोड़ उसके बेचोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, उसमें कम वैल्यू मिलेगी, है ना? एसेट्स इन पार्सल्स, कॉर्पोरेट डेटर एज ए गोइंग कंसर्न, मतलब पूरी की पूरी कंपनी बेच दी आपने। और बिजनेसेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज ए गोइंग कंसर्न, मतलब अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस अलग है ना? आपका माइनिंग का बिजनेस अलग है, होटल का बिजनेस अलग है, तो आप बिजनेस वाइज भी बेच सकते हो। मतलब तरीका यह है कि जैसे मर्जी बेचना है। ठीक है, और क्या बोलता है? प्रोवाइड दैट वेर एन एसेट इज सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी इंटरेस्ट, it shall not be sold under any of the clauses A to F unless the security interest there has been relinquished to the liquidation estate। मतलब ये कि जब तक रिलिंक्विश नहीं होगा सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तब तक आप नहीं बेचोगे, तब तो वो अपने आप बेचेगा ना सिक्योरिटी क्रेडिटर। ठीक है, नाउ 32A, सेल एज ए गोइंग कंसर्न। सेल एज ए गोइंग कंसर्न में क्या बोलता है? वेयर द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैज रिकमेंडेड सेल अंडर क्लॉज ई और एफ ड्यूरिंग सीआईआरपी, व्हाट द सीओसी डज इज सीओसी रिकमेंड्स दैट यू सेल इट एज ए गोइंग कंसर्न। तो पहले आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे पहले उसको ई या एफ में बेचने की। ई मतलब या तो पूरी सीडी को बेच दो एज ए गोइंग कंसर्न, या फिर उसके बिजनेस वाइज बेच दो। ठीक है, पहले आप ई और एफ अटेम्प्ट करोगे। अगर ई और एफ में नहीं बच बिकता तो फिर ए बी सी डी। ठीक है, चलिए, फॉर द Okay, I पर्पज have ऑफ one सेल। question. हाँ जी, I have one question. This यस sale यस। means is it outright sale or sale means is it an outright sale or sale in the form of auction or is it allowed? What is that definition नो, means? दैट इज मोड ऑफ सेल ना। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग व्हाट इज द मैनर ऑफ सेल, दैट इज द मोड ऑफ सेल। इट कुड बी प्रेफरेबल मोड इज ऑक्शन, बट if that is not possible then we can do private sale also. About that also we will study. Okay, okay, thank you. So, for the purpose of sale under sub-regulation 1, the group of assets and liabilities of the corporate debtor as identified by the committee of creditors under sub-regulation 2 shall be sold as a going concern. ठीक है, सो क्या होगा? वो ये कह रहा है कि भाई अगर आपने ई और एफ में बेचना है तो सीओसी माइट हैव आइडेंटिफाइड। Suppose COC has not identified during CIRP, then you will identify.
the liquidator will identify. Okay? And the liquidator may sell the assets of the corporate debtor under clause E of regulation 32 exclusively only at the first auction. So in the first auction, as per clause E, and what is clause E? Sale as a going concern, corporate debtor as a going concern. So it can be sold only exclusively at the first auction. That means in the first auction, you can say that, okay, I will sell it as a going concern only, right? And not in any other mode, exclusively. But suppose it was not sold as a going concern, then in the second auction, you have to give the other options also. ठीक है कि फिर आपको ये दूसरी वाली ऑप्शंस भी देनी पड़े. क्लियर है यहां तक? हाँ जी, यहां तक क्लियर है ना? Yes, clear. Yes, sir. ओके, अब हम चलते हैं आगे. ये क्या बोलता है? For the purpose of this sub-regulation, it is hereby clarified that the sale of the corporate debtor under clause E of regulation 32 cannot be offered as the only option for bidders after the first auction. मतलब फर्स्ट ऑप्शन में आप कह सकते हो कि आई विल सेल इट एज ए गोइंग कंसर्न ओनली, लेकिन एक बार फर्स्ट ऑप्शन हो गई, उसके बाद दूसरों में आपको दूसरी वाली ऑप्शंस भी देनी पड़े. दूसरी ऑप्शंस क्या है? वही एसेट्स एंड पार्सल्स, स्लम सेल, फलाना ढिमकाना. ठीक है. Where the liquidator is of the opinion that it is viable to run the corporate debtor as a going concern, he shall consult the consultation committee, and only on its advice he shall run the affairs of the corporate debtor as a going concern to the extent approved. ठीक है. So he will consult the consultation committee if he wants to run it as a going concern, right? Now What is 32B. what is a consultation committee? Is it something- Consultation committee is something similar to the committee of creditors. Committee of creditors is the decision making body during CIRP, and consultation committee is the committee which comprises of all the stakeholders, all the creditors, including operational creditors, employees, workmen, etc. But promoters do not have any voting rights, and related parties of financial creditors also do not have voting rights. Basically, how does it get formed? Is it any procedure given? Yes. We have already covered that. Let me briefly cover it again. So this is regulation 31A, which talks of the stakeholders consultation committee. So what it says? It says that the liquidator shall constitute a consultation committee comprising of all creditors of the corporate debtor. So all creditors, financial, operational, all will be included within 60 days from the liquidation commencement date. Based on the stakeholders list prepared under regulation 31, and this committee will advise him on various matters like remuneration of professionals, sale under regulation 32, including manner of sale, pre-bid qualifications, reserve price, marketing strategy and auction process, fees of the liquidator, valuation, manner in which proceedings of PUFE transactions will take place, review of marketing strategy in case of failure of sale as a going concern, continuation or restitution of any suits or legal proceedings, extension of payment of balance sale consideration. So on all these matters, this consultation committee shall advise the liquidator, right? And the committee of creditors, which was functioning during CIRP, that shall function as the consultation committee with same voting rights till constitution of the consultation committee. Because this consultation committee has to be constituted within 60 days. But first meeting of the consultation committee has to take place within 7 days. So how it will be possible? Because the COC shall function as consultation committee till consultation committee is constituted, right? Because 30 days are there for claims, and then another 30 days for verification. So naturally 60 days it will take, 60 days to verify the claims and then constitute the committee. So till that time, the COC shall function as consultation committee, right?
The voting share of a member of the consultation committee shall be in proportion to his admitted claim in the total admitted claim. Right? Provided a secured creditor who has not relinquished his security interest shall not be part of the consultation committee. So, if there is a secured creditor and he has given the option while filling up Form C or Form D that okay, he doesn't want to relinquish the security interest, then he will not be a part of the consultation committee. Right? Provided that the promoters, directors, partners, or their representatives may attend the meeting of the consultation committee but shall not have any right to vote. So they will not have any right to vote. Right? So there is a difference. So whether there is a secured creditor who has not relinquished his security interest, whether he can come to the meeting, yes or no? There is a secured creditor. He filled up Form C or Form D, and while filling up column number 8A, he says that he will not relinquish his security interest. Right? Now my question is whether he can come to the meetings of the consultation committee, yes or no? Yes. He can No, attend, but not what? he cannot attend. Not attended at all. हाँ, क्या Okay. बोला? Shall not be a part of the consultation committee. Okay, sir. मतलब आएगा ही नहीं, अलाउड ही नहीं है उसको आना. Okay, sir. दोनों में डिफरेंस है. And regarding promoters, directors, partners, or their representatives, whether they can come, Yes. they can come, but they will Yes. not have any right to vote. What? दोनों में डिफरेंस है. ठीक है. जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो ही shall not be a part of the consultation. उसको तो आना ही नहीं है. Hmm. भाई तुमने जब अपने आप ही बेचना है एसेट को तो बेचो, फिर यहाँ क्या करने आ रहे हो? सही है सर, सही है ना? But I have a question. Is Huh? it not unfair? Is it not unfair? Why? Because actually relegated. he wants to realize the asset on his own. No. The condition you said is he is not relinquished his security interest. That means he is still expecting to get it collected through this mode. Correct? No. Please read it. It says if he has not relinquished this security interest, he shall not be part of the consultation committee. That means he can become a part of the consultation committee only if he has relinquished the security interest. अगर अपने आप ही उसको बेचना है तो फिर बेचे ना, फिर यहाँ क्या करने आ रहा है? यहाँ तो उसका कोई रोल नहीं है. यहाँ क्या डिस्कशन हो रहा है? कंसल्टेशन कमेटी में डिस्कस क्या हो रहा है? बेचना कैसे है ना? ये सब चीजें डिस्कस हो रही हैं. उसको अपने आप ही बेचना है तो वो यहाँ क्या करेगा? उसको अपनी भी तो ऑक्शन वगैरह अरेंज करनी है ना. वो अपने आप अलग से ऑक्शन करेगा अपने एसेट्स का. वो उस पर ध्यान देगा. यहाँ क्या करेगा वो आकर के? But now another question. Suppose a secured creditor has not relinquished his security interest. ठीक है, वो बोलता है भाई मैं अपने आप बेचूंगा. Now he has arranged an auction. Liquidator wants to come to that auction. Whether liquidator can come at that auction? Yes or no? मेरा क्वेश्चन समझ गए आप? मेरा क्वेश्चन समझे कि नहीं? It is a little bit complicated actually. No, my question Sir, he is can come to that auction if he Very has a good. better buyer. very good. No. It's not the question of buyer. Basically, he has to take the interest of the corporate debtor. So he is interested in maximization of the interest of all the stakeholders. So he can come to that meeting. Even if he doesn't have buyer, even then he can join that meeting. भाई वो देखेगा ना कि ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा ऑक्शन में, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है. Sir. So he can come. There are Yes. decided cases on this that he can join that auction. No, my question first of all, why should liquidator is worry about it? Because he is taken up separately and he is doing the auction and he is taking care of security creditors. Why हाँ, liquidator has to worry on this process? Correct, no? Because anyhow he has taken up his own decision based on security interest. No, there are two situations. Number one, Hmm. secured creditor. Secured creditor said, okay, I will sell the asset on my own, right? Correct. He is not interested in relinquishing.
So Correct. he will not be a part of the consultation committee. This is one. Correct. Number two, if the liquidator wants to join that auction meeting where the secured creditor is selling the assets, he can join. Now, number two is this liquidator is arranging auction, but that secured creditor who has not linked with this security interest, he shall not be a part of the consultation committee, right? Because in consultation committee, what we are discussing, we are not discussing his asset, we are discussing other things. जो जिसका सिक्योरिटी उसके पास है सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास, वो तो लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट ही नहीं है, वो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे उसमें। हम उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं कि बाकी वाले एसेट जो हैं उनको कैसे बेचना है। दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। Provided that promoters, directors, partners, or their representatives may attend the meeting of the consultation committee but shall not have any right to vote. ठीक है? And if there is a financial creditor or his representative, if he is a related party of the corporate debtor, he shall not have any right to vote. ठीक है? Now, the liquidator may facilitate the stakeholders of each class, namely financial creditors in a class, workmen, employees, government departments, to nominate their representatives. How he will facilitate? He will provide a voting platform. Okay. If the shareholders of any class fail to nominate, then it shall be selected by a majority of voting shares of the class present and voting. ठीक है, ये हो गया। चलिए, नाउ वी वर एट मैनर एंड मोड ऑफ सेल। 32 हमने कर लिया, 32A देख लिया, 32B conduct of the meetings, mode of sale. Now let us go to mode of sale. Regulation 33. Regulation 33 क्या बोलता है? Mode of sale. The liquidator shall ordinarily sell the assets of the corporate debtor through an auction. Normally कैसे बेचना है? Auction. और ऑक्शन भी क्या है? पब्लिक ऑक्शन। अगर पब्लिक ऑक्शन नहीं होती फिर प्राइवेट सेल भी अलाउड है। If public auction is not successful, if no buyer comes, then subsequent auction भी हो सकती है। वो सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे इन शेड्यूल 1। ठीक है। The liquidator may sell the assets of the corporate debtor by means of private sale only after prior consultation with the consultation committee under regulation 31A in the manner specified in schedule 1। ठीक है। ये अगर इसको बेचना है बाय वे ऑफ प्राइवेट सेल, तो प्राइवेट सेल में क्या करना है? ये हैज टू टेक द प्रायर कंसल्टेशन विद द कंसल्टेशन कमिटी। ठीक है। और व्हाट आर द सिचुएशंस व्हेन द एसेट इज पेरिशेबल? एसेट पेरिशेबल कब होगा? सपोज इट हैज गॉट शॉर्ट एक्सपायरी, मेडिसिन है ना, या कुछ वेजिटेबल्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, इस टाइप के। साइकिल में कुछ भी होता है। The asset is likely to deteriorate in value significantly if not sold immediately. कोई corrosion वगैरह हो सकता है इस टाइप से। और the prior permission of the ये नरेंद्र जी आप म्यूट कर लीजिए अपने को, आपके यहाँ से कुछ आवाज आ रही है। और the prior permission of the adjudicating authority has been obtained for such sale। ठीक है। तो these are the situations in which he can sell it by way of private sale। ठीक है। Provided that the liquidator shall not sell the assets without prior permission of the adjudicating authority by way of private sale to किस को नहीं बेच सकते? Related party of the corporate debtor, his related party means related party of the liquidator। ठीक है। और any professional appointed by him। The liquidator shall not proceed with this sale of an asset if he has reason to believe that there is any collusion between the buyers or the corporate debtors, related parties and buyers, or the creditors and the buyer, and shall submit a report to the adjudicating authority in this regard, seeking appropriate orders against the colluding parties। ठीक है। उसको लगता है कि अगर मिले हुए हैं, कोई कार्टेल बना लेते हैं कई बार लोग, तो उस केस में वो क्या करेगा? ही शैल रिपोर्ट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एसेट मेमोरेंडम हमने पहले ही देख लिया था।
है ना, सिमिलर टू इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हमने चेक कर लिया, एसेट सेल रिपोर्ट देख लिया। अब हम चलते हैं शेड्यूल पर। ठीक है, ये है हमारा शेड्यूल 1, मोड ऑफ सेल। तो मोड ऑफ सेल में पहले हम देखते हैं ऑक्शन। ऑक्शन में क्या करना है इसको। Where an asset is to be sold through auction, a liquidator shall do so in the manner specified herein. ठीक है, सबसे पहले subject to provisions of regulation 2B, the liquidator shall issue a public notice of an auction for sale under regulation 32 within 45 days from the liquidation commencement date, unless the consultation committee advises to extend the timeline. तो सबसे पहले तो पब्लिक नोटिस देना है ऑक्शन फॉर सेल का विद इन 45 डेज। ठीक है, अगर कंसल्टेशन कमेटी कहती है भाई इसको एक्सटेंड कर दो तो एक्सटेंड कर देगा, अदरवाइज 45 डेज में पब्लिक नोटिस दे देगा। अब मुझे आप ये बताओ कि 45 डेज में तो अभी क्लेम्स भी वेरीफाई नहीं हुए, है ना, तो पब्लिक नोटिस क्यों दे रहे हैं, क्या रीजन है भाई? 30 डेज में तो क्लेम, रिसीट ऑफ क्लेम्स का पीरियड है 30 डेज का, 30 डेज है फिर वेरिफिकेशन के लिए, तो 45 डेज में नोटिस क्यों दे रहे हो? व्हाट इज द रीजन, कुछ आइडिया है? हाँ जी, आई होप माई क्वेश्चन इज क्लियर। मेरा क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? No, not clear. Can you repeat? माई क्वेश्चन इज 30 days period is there for submission of claims. Another 30 days is allowed to the liquidator to verify the claims, right? Now, why they are issuing this public notice within 45 days from the liquidation commencement date, when even the claims have not been verified? Any logic for this? Is it clear now? Clear, sir. हाँ, Question is clear, but situation or interpretation is not clear. The reason is that all the activities have to take place simultaneously. क्योंकि क्या होगा, अभी तो पब्लिक नोटिस दिया है, पब्लिक नोटिस के बाद वो आएंगे, वेरीफाई करेंगे एसेट्स को, समझ रहे हो, तब तक ये सारी एक्टिविटीज भी चलती रहेंगी, सारी चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। ऐसा नहीं Okay. होता कि पूरा काम हो जाए उसके बाद में आप तैयारी करो ना, ऐसा नहीं होता Okay. All situation in parallel. है। Parallel, sir. सब situation एक साथ parallel हाँ, चलनी सब चाहिए. साथ 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 चलती रहती है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Subject to the provisions of regulation 2B, the liquidator shall issue a public notice of an auction for sale under regulation 32 within 45 days from the liquidation commencement date, unless the consultation committee advises to extend the timeline. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, द लिक्विडेटर शैल इशू पब्लिक नोटिस फॉर द नेक्स्ट ऑक्शन। अगर मान लीजिए अगर ऑक्शन में कोई आया ही नहीं, बायर ही नहीं कोई आया, तो इन केस ऑफ फेल्ड ऑक्शन he shall issue the public notice for next auction within 15 days from the last failed auction. ठीक है, unless the consultation committee advises to deviate from the specified time period. ठीक है, जो लास्ट फेल्ड ऑक्शन है उसके 15 दिन के अंदर दोबारा नोटिस आप दोगे। Notwithstanding anything contained in this schedule, the liquidator shall complete an auction process within 35 days from the issue of public notice. 35 डेज के अंदर उसको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। ठीक है, 45 डेज में नोटिस देना है और अनदर 35 डेज में पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, 80 डेज में कंप्लीट करना है। क्या है प्रोसेस वो देख लेते हैं, क्या क्या करेगा। द लिक्विडेटर शैल प्रोवाइड टू द प्रोस्पेक्टिव बिडर एक्सेस ऑफ द एसेट्स अंडर ऑक्शन। भाई जो भी एसेट्स ऑक्शन हो रहे हैं वो देखना तो चाहेंगे ना लोग कि भाई कैसा एसेट है। अब कबाड़ी भी को भी आप बुलाते हो, कहते हो भाई हमारा ये फ्रिज बेचना है, तो वो देखेगा ना फ्रिज कैसा है, किस कंडीशन में है। इसी तरह से जो लिक्विडेटर है, he shall provide to the prospective bidder access of the assets under auction।
to facilitate their inspection and due diligence. ठीक है. A prospective bidder in an auction process shall deposit earnest money deposit at least up to 2 days before the date of auction. अगर कोई अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करनी है तो कम से कम इट हैज टू बी डिपॉजिटेड एट लीस्ट अप टू 2 days बिफोर द डेट ऑफ द ऑक्शन. Sir, is there any criteria for prospective bidder? The definition of prospective bidder, sir. Sir, either CD is also a prospective bidder, sir, or related party of CD, direct or indirectly, sir. भाई देखो ऐसा है कि ये 29A में इनएलिजिबल नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है. Okay, sir. Okay, ठीक है, sir. सही है, sir. है ना. To that point, okay, sir. बस हाँ, इतना sir. ही है, इतना वही देखना है आपको. 29A में एलिजिबल नहीं हो बस. अगर 29A में एलिजिबल है तो कोई दिक्कत नहीं. ए प्रोस्पेक्टिव ये हो गया. द लिक्विडेटर शेल प्रिपेयर ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी. ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएगा विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग प्रोफेशनल्स इफ रिक्वायर्ड फॉर द सेल ऑफ द एसेट. क्योंकि मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी ना भाई. हो सकता है कोई Yes. होटल हो, कोई प्लांट एंड मशीनरी हो, क्या पता क्या एसेट है ना. एसेट बड़ा भी हो सकता है. तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए भी ये एडवर्टाइजमेंट देंगे. प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन शीट्स फॉर द एसेट, प्रिपेयरिंग ए नोटिस ऑफ सेल एंड लाइजिंग विद एजेंट्स. तो ये सारी चीजें ये करेंगे. और इसमें जो स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी है उसका भी रोल है, वो भी एडवाइस करेगी. है ना. वो भी हमने रेगुलेशन 31 में देखा ना कि रिगार्डिंग मैनर एंड मोड ऑफ सेल दे विल आल्सो एडवाइस. ठीक है. The liquidator This shall prepare. earnest money, Yes, please. this earnest money deposit, is Yes. there anywhere specified how much it is like that, or it will be decided then and there? No, ये अभी next regulation में it's coming. We are coming to that point. In this next regulation, we are coming to this point. Point number 3. We are coming to your question. The liquidator shall prepare terms and conditions of sale, including reserve price, earnest money deposit, as well as pre-bid qualifications, if any. ठीक है. Provided that the liquidator shall not require payment of any non-refundable deposit or fee for participation in an auction under the liquidation process. एक तो ये है कि नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट आप नहीं ले सकते, रिफंडेबल डिपॉजिट आप ले सकते. ठीक है. नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट नहीं लेना है और कोई फीस फॉर पार्टिसिपेशन भी नहीं लेना है आपको. Provided further that the EMD shall not exceed 10% of the reserve price. That is your question, MBS Kumar ji. Correct, Your correct. question Yes, yes. है ना. तो Yes, it shall not exceed 10% of the reserve price. And you cannot ask for any non-refundable deposit or fee for participation. The idea is to encourage the bidders to have as many bidders as possible. है ना. अगर आप कंडीशंस लगा दोगे तो many bidders may not come. तो इसीलिए you may ask for refundable deposit to ensure seriousness, but you cannot ask for any non-refundable deposit. नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट का मतलब क्या है? नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट का मतलब ये है कि भाई अगर if you fail तो It's then like that deposit नहीं will sir, not be. it's like a tender fee. हाँ Tender fee, बिल्कुल sir. बिल्कुल ठीक है. Provided further that the liquidator shall mention in the auction notice the period extended under clause H of subregulation 1 of regulation 31A. ठीक है. वो 31A का H1 क्या बोलता है? वो वही बोलता है कि आपका स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी में एक्सटेंड दी नोटिस पीरियड. The reserve price shall be the value of the asset arrived at in accordance with regulation 35. 35 में हमने पढ़ लिया वैल्यूएशन 35(1) and 35(2). Now we have got the value of the asset. तो जो रिजर्व प्राइस होगा, रिजर्व प्राइस आपका उस वैल्यू से कम तो नहीं होगा, है ना. एंड वेयर एन ऑक्शन फेल्स द रिजर्व प्राइस इन सब्सिक्वेंट ऑक्शंस मे बी फर्दर रिड्यूस्ड बाय नॉट मोर देन 10% एट ए टाइम. ठीक है. जो भी आपने रिजर्व प्राइस रखा कोई आया ही नहीं, आप 10% रिड्यूस कर दीजिए. नेक्स्ट टाइम फिर 10% रिड्यूस कर सकते. Provided that in cases where the reserve price of the failed auction of the asset was fixed as per the valuation under subregulation 1 of regulation 35, the liquidator may, on the advice of the consultation committee, reduce the reserve price up to 25% once during the process. ठीक है.
तो क्या होगा, वो ये कह रहा है कि where the reserve price of the failed auction of the asset was fixed as per the valuation under sub regulation 1 of regulation 35। ठीक है, सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 35 क्या है, CIRP वैल्यूएशन। तो इन दैट केस द लिक्विडेटर में ऑन द एडवाइस ऑफ द कंसल्टेशन कमेटी रिड्यूस द रिजर्व प्राइस अप टू 25% वंस ड्यूरिंग द प्रोसेस। नॉर्मली क्या है कि दे कैन नॉट रिड्यूस इट बाय नॉट मोर देन 10% एट ए टाइम। लेकिन अगर CIRP वैल्यूएशन के बेस पे आपने रिजर्व प्राइस फिक्स किया है तो वंस यू कैन रिड्यूस इट अप टू 25%। ठीक है, 5%. द लिक्विडेटर शैल इशू a public notice of an auction in the manner specified in regulation 12(3)। रेगुलेशन 12(3) क्या है, रेगुलेशन 12(3) वही है, पब्लिक नोटिस। भाई आपको एक इंग्लिश पेपर, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में देना है, वो सब Hmm. है ना, जो पब्लिक अनाउंसमेंट का है। इसी तरह हाँ. से ये पब्लिक नोटिस के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द लिक्विडेटर मे अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू डिस्पेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेशन 12(3)(a कीपिंग इन व्यू द वैल्यू ऑफ द एसेट इंटेंडेड टू बी सोल्ड बाय ऑक्शन। कई बार क्या होता है, सपोज द वैल्यू ऑफ द एसेट इज लेस, है ना, अब आप पेपर में ऐड दे रहे हो, पेपर में ऐड देने की भी कॉस्ट आती है, तो आपको लगता है कि वैल्यू तो ज्यादा है नहीं एसेट की, हम काहे को पेपर में ऐड देंगे, है ना, तो आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि मिलॉर्ड पेपर, इसकी पेपर की कॉस्ट इतनी आ रही है ना, वैल्यू ज्यादा है नहीं, फायदा क्या है, तो इसको हम पेपर में ऐड नहीं दें। ठीक है, द पब्लिक नोटिस शेल स्टेट दैट द प्रोस्पेक्टिव बिडर शेल सबमिट एन अंडरटेकिंग। जो प्रोस्पेक्टिव बिडर है वो क्या है, वो अंडरटेकिंग देंगे कि दैट दे डू नॉट सफर फ्रॉम एनी इनएलिजिबिलिटी अंडर 29A। ठीक है, एंड इफ फाउंड इनएलिजिबल द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिटेड शैल बी फॉरफिटेड। ठीक है, इनको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि दे आर एलिजिबल अंडर 29A, और अगर इफ दे आर फाउंड इनएलिजिबल देन द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिटेड शैल बी फॉरफिटेड। ठीक है, क्लियर है। Yes. The liquidator shall provide all assistance necessary for the conduct of due diligence by interested buyers। अब ड्यू डिलीजेंस क्या होती है, मान लो कार है, कार को देखने के लिए आएंगे प्रोस्पेक्टिव बिडर, है ना, तो वो सारा उनको क्या करेगा, इट शैल प्रोवाइड ऑल नेसेसरी असिस्टेंस। मतलब कोई पेपर देखना चाहो पेपर देखो, आप फिजिकली इंस्पेक्शन करना चाहो फिजिकली इंस्पेक्ट करो। ठीक है, वो देखेंगे ना उस चीज को। Yes. हम्म। It's like a pre-bid meeting. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। From a date to be notified through circular, the liquidator shall sell the assets only through an electronic auction platform empaneled by the board। ठीक है, अच्छा उनको लगता है कि फिजिकल ऑक्शन से मैक्सिमाइज हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन होती है, लेकिन लगता है कि फिजिकल ऑक्शन से अगर मैक्सिमाइज हो सकता है तो क्या होगा, आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से परमिशन लो और फिजिकल ऑक्शन करवा दो। ठीक है, द लिक्विडेटर में एंगेज द सर्विसेज ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल ऑक्शनियर्स स्पेशलाइजिंग इन ऑक्शनिंग सच एसेट्स फॉर दिस पर्पस। ठीक है, an auction shall be transparent and the highest bid at any given point shall be visible to the other bidders। तो जो हाईएस्ट बिड है वो विजिबल होती है अदर बिडर्स को भी, उसका पर्पस क्या है, ताकि वो और ज्यादा बिड कर सके। ठीक है, लेकिन अगर उसको लगता है कि भाई नहीं दिखाने से फायदा है तो वो अप्लाई करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि भाई ये जो दूसरों की बिड है वो हाईएस्ट बिडर दिखाई ना दे। ठीक है, इफ द लिक्विडेटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट एन ऑक्शन वेयर बिड अमाउंट्स आर नॉट विजिबल is likely to maximize realization from the sale of the assets and is in the best interest of the creditors, he may apply in writing to the adjudicating authority for its permission to conduct an auction in such manner। बेसिकली आप देखोगे कि बार बार वो किससे पूछ रहा है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से। पब्लिक नोटिस नहीं करना चाहता, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से पूछ लो। ठीक है, अगर उसको लगता है कि बिडर्स मिले हुए हैं आपस में, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करो। अगर लगता है इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन नहीं करनी, फिजिकल ऑक्शन करनी है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पूछ लो।
उसको लगता है हाईएस्ट बिड दूसरों को नहीं दिखानी है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पूछ लो। ठीक है। If required, the liquidator may conduct multiple rounds of auctions to maximize the realization from the sale of the assets and to promote the best interest of the creditors. ठीक है। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे क्या नरेंद्र जी, कुछ बोल रहे थे आप? No, sir. No, sir. ओके। Please continue, sir. Continue, sir. Please. ओके। नहीं, नहीं, sir. नहीं, sir. 11, yes, sir. 11A. वेयर द लिक्विडेटर पढ़े रिजेक्ट सर, पढ़ू मैं सर. Where the liquid, हाँ पढ़िए पढ़िए। where the liquidator reject the highest bid in an auction process, he shall intimate the reasons for such rejection to the highest bidder and mention it in the next progress report. आपको क्या लगता है किस वजह से मतलब रिजेक्ट कर सकता है हाईएस्ट बिड? आपको क्या वही सर लगता है? 29A. नहीं 29A तो 29A का तो एफिडेविट देगा ना, वो पहले से एफिडेविट देगा कि भाई वो एलिजिबल है। अगर बाद में भी ओके पता सर. चलता है हाँ तो हाँ. उसका तो ईएमडी भी फॉरफिट हो जाएगा। 29A वाली बात नहीं है। वो किस वजह से रिजेक्ट कर सकता है? ओके ओके. भाई उसको लगता है कि ये जो इसमें ज्यादा आ सकता है प्राइस, है ना, तो उस ओके. केस में वो हाँ. रिजेक्ट कर देगा। वो रीजंस बताएगा फॉर सच रिजेक्शन टू द हाईएस्ट बिडर एंड मेंशन इट इन द नेक्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट। एक नेक्स्ट देखते हैं। ऑन द क्लोज ऑफ द ऑक्शन द हाईएस्ट बिडर ऑन द क्लोज ऑफ द shall ऑक्शन। be invited to provide. हाँ Hmm. पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। On the close of the action, the highest bid. On the close of the action, the highest bidder shall be invited to provide balance sale consideration within 90 days. Within 90 days, or such period has mentioned in the auction notice under हम्म, clause 3 हम्म, of the date of such demand, हम्म, provided that payment made after 30 days shall attract interest at the rate of 12%. हम्म, Provided further that the sale shall be cancelled if the payment is not received within the period provided under this clause. मतलब मीन्स समझाओ क्या मतलब है इसका? जो भी पेमेंट है वो 30 डेज में आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो 12%. यस सर, जो भी ऑक्शन हुआ उसका जो पेमेंट है नहीं, सर, जो इन बैलेंस लमसम सेल और इन कंसिडरेशन है इंस्टॉलमेंट, इट कितने दिन में विल आना चाहिए? 30 डेज. 90 डेज में। बैलेंस ओके सेल सर, सॉरी सर. हाँ कंसिडरेशन सर. आपका 90 डेज में आना चाहिए। देखो, एक तो पहले ईएमडी दिया होगा इन्होंने, ठीक है, हाँ. ईएमडी दिया हम्म होगा या अपना रिफंडेबल डिपॉजिट दिया होगा, हम्म है ना, क्योंकि नॉन रिफंडेबल हम्म डिपॉजिट तो आप हम्म. ले नहीं सकते। आपने ईएमडी दिया होगा या रिफंडेबल डिपॉजिट हम्म. दिया होगा, और उसको एडजस्ट करने के बाद में जो ओके बाकी बचता है वो आपको 90 डेज में देना है। और अगर आप 30 डेज के बाद देते हो तो ओके उस सर. पर 12% इंटरेस्ट लगेगा, है ना, ये है। हाँ. ओके ओके. और प्रोवाइडेड फर्दर मान लो कि 12A 90 विदिन. डेज में आया ही नहीं वो, आपने ईएमडी दे दिया, आप बाद में आए ही नहीं, तो फिर क्या होगा, सेल कैंसिल हो जाएगी। हम्म. ठीक है। ओके. हम्म. विद इन 12A with 12A within 3 days of declaring the highest bidder, the liquidator shall conduct due diligence and verify the eligibility of the highest bidder. तो सबसे पहले जब हाईएस्ट बिडर इसको बता दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो ड्यू डिलिजेंस करेंगे और एलिजिबिलिटी भी इसकी जज करेंगे हाईएस्ट बिडर की। ठीक है। Okay. 12B, the liquidators are present the auction result declaring of highest bidder and the due diligence conducted on it to the consultation committee under section 31A. रेगुलेशन 31 है। Okay, sir. हम्म, Here, 12C, the liquidators declare the highest bidder as a successful bidder or reject such bid after consultation with the consultation committee under section 31A. हम्म, 12D, if the bidder is found ineligible, the EMD
by him shall be forfeited. आपने बोला सर अभी वही है सर. हाँ Well, in case of highest bidder is found ineligible, the liquidator may, in consultation with consultation committee, declare the next highest bidder as successful bidder after following the same progress has provided under clause 12A to 12E, A to E में जो है वही है. 13A, on payment of the full amount, the sale shall stand completed. The liquidator shall execute certificate of sale or sale deed to the transfer such assets, and the assets shall be delivered to him in the manner specified in the terms of sales. ठीक है. नाउ नेक्स्ट देखते Okay, हैं sir. प्राइवेट सेल. Private sale. Private sale, where an asset is to be sold through private sale, a liquidator shall conduct the sale in the manner specified herein. The liquidator shall prepare a strategy to approach interested buyer for assets to be sold by private sale. The private sale may अच्छा, be एक इसमें conducted. बता दीजिए क्वेश्चन मुझे कि प्राइवेट सेल में भी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी को पूछना है कि नहीं पूछना है, कि लिक्विडेटर अपने आप ही कर लेगा सब. हाँ सर, 3 में है. The private sale shall conform to the buyer after consultation with COC SCC under regulation 33 sir. 31 है. हाँ 33 सर, 33 लिखा है सर. द प्राइवेट सेल 3A है सर. प्राइवेट सेल का पॉइंट नंबर 3 है. नहीं, वो तो ये है कि प्राइवेट सेल कंफर्म के लिए. मैं पूछ रहा हूं कि जब स्ट्रेटेजी तैयार करोगे, ये बोल रहा है ना द लिक्विडेटर शेल प्रिपेयर ए स्ट्रेटेजी. मेरा क्वेश्चन ये है कि वाइल फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटेजी whether advice of the consultation committee is required or not. This is my question. ये आपको रेगुलेशन 31A में मिलेगा. 31A जब हम पढ़ रहे थे, 31A में क्या लिखा था? ये लिखा था, देखिए 31A में ये सेल अंडर रेगुलेशन 32 इंक्लूडिंग मैनर ऑफ सेल, प्री बिड क्वालिफिकेशन, रिजर्व प्राइस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड द ऑक्शन प्रोसेस. तो इन सारे के लिए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी का एडवाइस चाहिए. पर सर प्राइवेट सेल कहाँ पे लिखा है सर? भाई वो रेगुलेशन 32 में ही आ गया ना सारा. ओके ऑक्शन सर. प्रोसेस में तो आ ही गया ना. भाई ऑक्शन ओके. प्रोसेस क्या होता है? दो पब्लिक ऑक्शन होगा या प्राइवेट सेल होगा. ओके सर, ऑक्शन प्रोसेस इंक्लूड बोथ पब्लिक और एंड क्या. प्राइवेट बोथ. ओके हाँ. सर. ओके, ठीक ठीक है सर. और 3A, 3 private sale may be conducted through directly licensing with a potential buyer or through agents, through retail shops, or through any other means that is likely to maximize the realization from the sale of assets. 3A, the private sale shall be conformed to the buyer after consultation with consultation committee under sub regulation 33. 4, the sale shall stands completed in accordance with the same terms and condition. 5, thereafter the assets shall be delivered to the purchaser on receipt of full consideration for the assets in the manner specified in the term of sale. सर उसपे टैक्सेशन का इश्यू नहीं आएगा सर? टैक्सेशन क्या बोल रहे हो आप? ठीक है सर. टैक्सेशन का इश्यू तो ठीक है सर, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट सर. अभी स्लम सेल का है, वो सब है, तो अब आप ये टैक्सेशन बता का दो भी. मेरे को कि अब आपने सेल करनी है एसेट्स की. ओके. हाँ. अब आप मेरे को थोड़ा समझाओ. आपने पूरी कहानी पढ़ ली. अब हम्म. मेरे को ये समझाओ कि जब आपने सेल करनी है तो किस तरह से करोगे, कैसे प्रोसीड करोगे. आप लिक्विडेटर हो. आप मुझको 5 मिनट में समझाओ कि आप पूरी हम्म. कहानी समझी आपने. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, क्या सीआईआरपी में सीओसी भी कुछ डिसाइड करती है क्या सेल के बारे में? सीओसी, whether COC decides anything regarding sale of assets पहले. during CIRP हाँ. process? Yes or no? यस. कोई रेगुलेशन 39D? 31 है 39D सीआईआरपी रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ. सीआर पे रेगुलेशंस. सीआईआरपी रेगुलेशन मेरे हिसाब से रेगुलेशन नंबर 39D है शायद. 39D. 39D में क्या बोलता है वो?
39D में बोल देता है पीस ऑफ लिक्विडेटर, और 39C में बोल देता है असेसमेंट ऑफ सेल एज ए गोइंग कंसर्न। हम्म ठीक है, तो वो हम्म क्या करता है, 39C जो है रेलिवेंट रेगुलेशन है, हमें 39C से शुरू करना है। हम्म देखो सीआईआरपी जब लास्ट हो रही है, सीआईआरपी में वो सीओसी के पास तो सारी कहानी होती है, उसने पूरा समझा होता है केस को, तो वो ये बता देता है भाई इसको एज ए गोइंग कंसर्न आप बेचना, पहले कोशिश करना ई और एफ में बेचने की, अगर ई और एफ में नहीं हो तो फिर ए टू डी, जैसे वो एसेट्स इन पार्सल्स, फलाना लम्प स्लम सेल वगैरह निपटाना। ठीक है, हम्म अब अगर मान लो सीआईआरपी में सीओसी ने कुछ नहीं बोला, तो फिर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी से पूछेगा, है ना, कंसल्टेशन कमेटी इसमें एडवाइस करेगी। हाँ नॉर्मली क्या करना है इसको, नॉर्मली पब्लिक ऑक्शन में बेचना है, अगर पब्लिक ऑक्शन नहीं होगी तो फिर प्राइवेट सेल में जाना है। ठीक है ना। सही है सर। हाँ सर। अच्छा, पब्लिक ऑक्शन में जाना है, कितने दिन का नोटिस देना है, और नोटिस कब देना है? Public notice of हाँ public notice of an action for sale under regulation 32 within 45 days from the liquidation commencement date unless the हाँ COC advised to extend the timeline. हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या पब्लिक नोटिस को आप डिस्पेंस विद भी कर सकते हो, और किन सिचुएशन में डिस्पेंस विद करोगे? आपको लगता है पब्लिक नोटिस देने का जरूरत ही नहीं है यार, एसेट की वैल्यू कुछ है नहीं, हम पब्लिक नोटिस देंगे, पेपर वाला भी कैसे पैसे मांगेगा, खर्चा होगा, तो क्या हम वेदर वी कैन डिस्पेंस विद द पब्लिक नोटिस, यस और नो? With the prior approval of AA. वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, वेदर यू कैन आस्क फॉर रिफंडेबल डिपॉजिट ड्यूरिंग ऑक्शन, रिफंडेबल डिपॉजिट ले Refundable? सकते हो क्या? No, no, sir. Just अभी बोला सर, it is not permittable, नहीं, permissible. रिफंडेबल डिपॉजिट ले सकते हो, Schedule six. नॉन रिफंडेबल नहीं ले सकते। Okay, sir. हाँ सर, sorry सर। रिफंडेबल डिपॉजिट तो ले सकते हो ना आप, रिफंडेबल डिपॉजिट का पर्पस क्या है, कोई वैसे ही पंगे लेने के लिए नहीं ऑक्शन में आ रहा, सीरियस बिडर्स ही आ रहे हैं, है ना, टू एंश्योर सीरियसनेस आप रिफंडेबल डिपॉजिट ले सकते हो, लेकिन नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट नहीं ले सकते। अच्छा, ईएमडी Okay. का कोई कंडीशन है क्या, कितनी ईएमडी लेनी है मैक्सिमम? Provided EMD shall not exceeds 10% of the reserve price. और रिजर्व प्राइस किस बेसिस पर फिक्स करोगे आप? रिजर्व प्राइस भी फिक्स Reserve करने का कुछ बेसिस होगा ना, रिजर्व प्राइस कैसे फिक्स करोगे आप? और रिजर्व प्राइस के लिए क्या स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी से पूछोगे, या लिक्विडेटर अपने आप कर सकता है? reserve price. हम्म पहले तो रेगुलेशन 35 ए देख लो, 31 ए, 31 ए में क्या बोलता है कि रिजर्व प्राइस में भी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी का कुछ रोल है, यस और नो? हम्म। दे दिया ना, सेल अंडर रेगुलेशन 32 इंक्लूडिंग मैनर ऑफ सेल, प्री बिड नहीं, क्वालिफिकेशन, रिजर्व प्राइस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड ऑक्शन प्रोसेस, सब में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी का रोल है। चलो ठीक है, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन क्या बेसिस क्या हम्म, होगा, आप लिक्विडेटर हो, आपको रिजर्व प्राइस फिक्स करना है, किस बेसिस पर फिक्स हम्म। करोगे? कोई तो तरीका। Valuation report sir, valuation report sir, value वेरी गुड, report. वेरी गुड, वेरी गुड। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट में नॉर्मली क्या Value होगा? का हाँ valuation हाँ report WDV of based on financials. हाँ। अच्छा, और मान लो आपने रिजर्व प्राइस फिक्स कर दिया, कोई बाया आया ही नहीं, अगली बार कितना प्राइस रिड्यूस कर सकते हो आप? It should be 10% sir. हाँ, इट कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड बाय नॉट मोर देन 10% 10. एट ए टाइम। हाँ हाँ ऐसा भी हाँ हो सकता आणि है ना, if सेकंड में भी कोई ना आए, फिर थर्ड हम्म, ऑप्शन करोगे आप, फिर थर्ड हम्म, ऑप्शन में दोबारा 10% रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, It's a और अगर 25 आपने percentage. रेगुलेशन 35(1) में फिक्स किया है, 35(1) क्या है, सीआईआरपी रेगुलेशन में CRP. वैल्यूएशन करवाया था आपने, तो उसमें वन हम्म। टाइम वंस यू कैन रिड्यूस इट अप टू 25%। 5%. Yes. ठीक है, चलो, तो ये कुछ कुछ आइडिया हाँ, आपको हो गया कि भाई ये कहानी है इसकी, है ना, मैनर एंड मोड ऑफ सेल, अब थोड़ा सा yes. क्लियर। I यस प्लीज, have one question. यस प्लीज। This we have we have read- we have read one condition called forfeiture of advance, kind of thing, हाँ for which we set the 90 days time limit. राइट,
But earlier we read that 45 plus 35, 80 days time limit we discussed the earlier to No, complete this no, 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 auction no. process. 80, 45 days is for issue of public notice. And they say that within 35 days, this process shall be completed. Correct. But this process completion means that this ड्यू डिलीजेंस है ना, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स वगैरह, उसके लिए बोल रहा है वो. Hmm. दिस 90 days period is from the date of the auction. From the date of the auction, so within 90 days payment has to be made. That 80 days period is for completing the formalities. Because Okay, within that means 80 45 days days is you will issue the public notice. Then once public notice is issued, then you will be getting the bidders. So you will provide them the facilities for due diligence, etc. है ना? So all these things, that formality should be completed within 80 days. That is the meaning. okay. सही That बात है 90 सर. means days. सर वो basically हाँ, that public auction should take place within 80 days. आप ऐसे समझ लो इसको. Okay. 80 डेज क्या है? क्योंकि आपका तो 1 ईयर का पीरियड है ना पूरा लिक्विडेशन का. तो पूरा लिक्विडेशन तो आपको कंप्लीट करना है 1 ईयर में. 90 days नहीं था सर. क्या 90 डेज? कंप्लीशन ऑफ. वो तो सेल के लिए है ना, मैं लिक्विडेशन प्रोसेस पूरे की बात कर रहा हूँ. ओके सर, ठीक ठीक है सर, ठीक है. हाँ. दोनों में फर्क है ना. लिक्विडेशन ओके प्रोसेस तो वो तो आपको 1 ईयर का पीरियड है ना. ओके सर, ओके ओके सर. हाँ. So हाँ, if I सही understand है सर. correctly, the यस सर. auction entire period is 80 before actual transaction and 90 after transaction. Right. That means 80 total days 90 plus is 80, that 170 you days. can Is it say like it that? like this, Total that auction within period. 80 days the public auction should take place. Because actually within the, please try to understand, within 45 days you have to issue the public notice, public auction notice, right? In the auction you will say that okay, you first you express your interest, right? Then prospective bidders will come. Then you will say that okay, you come for inspection. है ना? So all these processes should be completed within 80 days. That is the meaning. Okay. भाई जो पब्लिक नोटिस है, पब्लिक नोटिस का मतलब क्या है? पब्लिक नोटिस इज दैट ओके ऑक्शन विल टेक प्लेस और वी आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग. सो दैट इज एन इंटेंशन टू सेल बेसिकली. दैट हैज टू बी गिवन विद इन 45 days. देन बिडर्स विल कम, देन दे विल वेरीफाई द एसेट्स, है ना? देन दे विल ऑफर दिस आईएमडी. ये सब होगा पूरा. ड्यू आप भी वेरीफाई करोगे वेदर दे आर एलिजिबल और नॉट. तो इस सारे प्रोसेस के लिए 80 डेज का टाइम है. ये नहीं कि भाई पैसा भी आ जाए सब कुछ हो जाए, वो नहीं है. वो तो ऑक्शन के बाद में फिर 90 डेज का टाइम है आपको फॉर रिसीविंग द पेमेंट. सर वो 80 days वाला कहाँ पे लिखा है सर? 80 डेज वाला ये लिखा ना शुरू में, ये हाँ ये No, no. Actually, my point is हाँ 45 plus 35, 80 days. After that, we will receive the payment after 90 days. That means 90 plus 80 total auction process will get completed from the हाँ end to end. हाँ 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 ठीक है. Right? हम्म. Correct, राइट. no? राइट. Right. That's it. दैट इज द मैक्सिमम पीरियड. Correct, मतलब correct. सर nowhere is mentioned 80 days will be but 45 plus 35 equal to 80. That's why he is saying 80 total 80 days time period for this process. हाँ I हाँ think. वो तो है. Okay वो sir. ऑक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने. ऑक्शन प्रोसेस क्या है एक्चुअली? प्रोसेस का मतलब ये है कि इनवाइटिंग द बिडर्स, अलाउइंग देम टू इंस्पेक्ट द एसेट्स विच आर टू बी सोल्ड, है ना? सबमिशन ऑफ हम्म. सिक्योरिटी डिपॉजिट, ड्यू डिलिजेंस, ये सब चीजें, इस सब के लिए 35 डेज का पीरियड है. सर वो केस लो करवा दो ना सर, वो फार्मा वाला है ना सर, केस स्टडीज वाला, वो इट इज बेटर सर, बेटर कौन फॉर सा? कंसेप्चुअल क्लैरिटी. वो फार्मा आपने जो ग्रुप में नहीं डाला सर, इसके लिए मोड ऑफ सेल के लिए सर, हम्म. वो वो सर दो फटाफट कर देते हैं सर, टाइम हाँ हो तो कर सर. लेते हैं. बिल्कुल ठीक है. हाँ सर. हम्म. ये कंपाइलेशन ऑफ केस स्टडीज है ना? हाँ सर वो ग्रुप में अभी देखता हूँ.
तो केस स्टडी अच्छा है सर, जो भी करो सर। ये आ गया ना, नजर आ रहा है आपको केस स्टडीज? केस स्टडीज। है ना? हाँ सर, आ गया सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो अभी क्या है, पहले तो हमने क्या किया इसमें, बेसिकली सेक्शन वाइज इसको डिस्क्राइब कर दिया, हाँ सर। है ना, कि भाई हाँ एक सर। एक एक लाइन में एक एक सेक्शन को डिस्क्राइब कर दिया। और अभी केस स्टडीज में देर कुड गिव यू क्वेश्चंस ऑन वेरियस इश्यूज, जैसे कंट्रीब्यूशन टू लिक्विडेशन कॉस्ट, हम्म। है ना। हम्म। कंट्रीब्यूशन टू लिक्विडेशन कॉस्ट कोई बता सकता है इन वन वन और टू लाइंस क्या होता है ये? सपोज कंट्रीब्यूट। द लिक्विड एसेट्स आर लेस देन द लिक्विडेशन कॉस्ट। जो लिक्विड एसेट्स है दे आर लेस देन द लिक्विडेशन कॉस्ट। भाई देखो, दो टाइप के एसेट होते हैं आपके पास, कुछ होंगे लिक्विड एसेट्स, कुछ होंगे इलिक्विड एसेट्स, है ना। लिक्विड फिक्स। हाँ। तो अगर इसको लगता है कि भाई जो एसेट्स है दे आर नॉट अवेलेबल टू पे दी लिक्विडेशन कॉस्ट, तो वो क्या करेगा, उसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोलेगा यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द लिक्विडेशन कॉस्ट, रेगुलेशन 2A हमने पढ़ा है ना। हम्म। और किस रेशियो में वो कंट्रीब्यूट करेंगे, इन द रेशियो ऑफ देयर डेट, और दैट हैज टू बी डिपॉजिटेड इन एन एस्क्रो अकाउंट विद इन 7 days फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। ठीक है। क्या उनको इंटरेस्ट मिलेगा? द आंसर इज यस, एट RBI रेट्स, और इट शैल बिकम पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन कॉस्ट। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ ही लिया था, है ना। हम्म। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में दो तीन बातें हैं। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में मेन मेन बातें क्या है? पहली बात कि दिस हैज टू बी फर्स्ट 90 days शैल बी काउंटेड फॉर दिस, है ना। तो दिस प्रोसेस हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 days। जो लिक्विडेशन का पीरियड है, आउट ऑफ दैट फर्स्ट 90 days यू विल कंसिडर फॉर दिस। ठीक है। हम्म। 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 हाँ जी। देन इंडिपेंडेंस ऑफ लिक्विडेटर, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, एक बार वो देख लेते हैं जरा ये। रिगार्डिंग मैनर एंड मोड ऑफ सेल, ये कह रहे हैं ना आप? वॉलेंट्री लिक्विडेशन नहीं है सर। ये 53 के ऊपर है ना। सर नहीं सर, अभी मैंने पोस्ट किया सर, केस स्टडी ऑन मोड ऑफ सेल सर। जस्ट आई हैव पोस्टेड इन 24 जन ग्रुप। वो है सर। अभी देख लेते हैं। हाँ, हाँ वो अलग होगा एक्चुअली, वो इसमें नहीं होगा मेरे को लग रहा। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ। मैं यहाँ से भी निकाल देता हूँ, मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। हाँ ये रहा, केस स्टडी ऑन मोड ऑफ सेल, ये अलग है। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, ठीक है। वो एक्चुअली उस वाले फोल्डर में नहीं था, ये अलग है। हाँ सर, ठीक है सर, नो इश्यू सर। मैं समझ गया, मुझे भी याद नहीं रहता कई बार इतना ना। ये नहीं है। नहीं सर, सही है सर, देर आर मल्टीपल। हाँ, इसकी बात कर रहे हो आप ना, केस स्टडी ऑन मोड ऑफ सेल, यस सर, यस 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 यस, परफेक्ट है सर। है ना। हाँ, हाँ सर, हाँ सर। तो ये भी है। अब इसमें क्या है कि केस स्टडी ऑन मोड ऑफ सेल अंडर लिक्विडेशन प्रोसेस।
भाई क्या है, डिफरेंट एसेट्स है, फार्मास्यूटिकल डिवीजन है, रियल एस्टेट डिवीजन है, फिशरीज डिवीजन है ना। हम्म तो दिस इज द अमाउंट एंड दिस इज द रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इन्वेंट्री लाइंग इन फार्मास्यूटिकल डिवीजन हैज शॉर्ट एक्सपायरी। तो इन्वेंट्री डिवीजन के बारे में बताइए कि मिनिमम रिजर्व प्राइस कितना होगा इसका। आई होप दिस केस स्टडी इज विजिबल टू यू, इज इट विजिबल? मिनिमम रिजर्व प्राइस। मिनिमम रिजर्व प्राइस आपको फिक्स मिनिमम करना है रिजर्व प्राइस फार्मास्यूटिकल सर। डिवीजन का। यस यस सर। कितना होगा? 1000 होगा, 600 होगा, या कुछ और अमाउंट होगा, क्या होगा? 6 हाँ, मिनिमम आपका जो रिलायजेबल वैल्यू सिक्स उतना तो हंड्रेड होना ही 600. चाहिए। चाहिए। यस 600 सर। ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ दिस सेट एज अराइव्ड एट अकॉर्डिंग विद रेगुलेशन 35। ठीक है। 35। चलिए। ओके। हाँ अच्छा अब मान लीजिए इफ द ऑक्शन फेल्स, आपने 600 प्राइस रख दिया, 600 पर कोई बायर नहीं आया, तो अब आप क्या करोगे? कितने परसेंटेज तक रिड्यूस कर सकते हो इसको? 25% डिवाइडेड विथ 10%. 10%. 10%। और कोई 25% वाला भी ऑप्शन है क्या? हम्म वो किस केस में होता है? मे एडवाइस कंसल्ट with the approval of SCC। हाँ, लेकिन क्या है, अगर आपने वैल्यूएशन कराया है एज पर रेगुलेशन 35(1), मतलब सीआईआरपी वाला वैल्यूएशन है। अगर सीआईआरपी वाला वैल्यूएशन है तो यू कैन रिड्यूस इट वंस अप टू 25। 5%। ठीक है। हम्म अच्छा अगर आपको 75 से भी कम करना है तो किसकी परमिशन चाहिए? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की या सीसी की? Adjudic is more than 75%। हम्म। कहाँ पे है सर वो? वो 1 का 1/4 में है। 1 का 1/4 में क्या होता है कि भाई आपको 35 के हिसाब से करना है और यू कैन हम्म रिड्यूस इट अप टू 10%। और अगर आपने 35(1) के हिसाब से फिक्स किया है, 35(1) क्या है, सीआईआरपी रेगुलेशंस के हिसाब से फिक्स सी किया है, है। तो यू कैन रिड्यूस इट अप टू 25% वंस ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है। नहीं पर सर मोर देन 75% वी कैन रिड्यूस देन अप्रूवल ऑफ डबल एन सी सी। ऐसा कुछ है ही नहीं, कहीं कोई ऐसा परमिशन नहीं है। नहीं है आप सर ट्वेंटी फाइव मतलब। परसेंट से रिड्यूस कर ही नहीं सकते। ओके सर ठीक है सर। मैक्सिमम अप टू 25% कर सकते हो, वो भी अगर आपने वैल्यूएशन 35(1) में करवाया हुआ तो। अदरवाइज हाँ आप पर सर 10% ही कर सकते हो। सर 25% ऑफ what of reserve price and reserve price will be रिजर्व प्राइस decided by। आप, हाँ रिजर्व हाँ पैसा है ना। देखो दो ही तरह से रिडक्शन आप कर सकते हो। ओके। रिडक्शन आप कैसे कर सकते हो? या तो 10% कर सकते हो जो भी आपने रिजर्व फिक्स किया। अगर आपने वैल्यूएशन 35(1) में करवा रखा है, मतलब सीआईआरपी में करवा रखा है, इसका मतलब पुराना वैल्यूएशन हो गया ना आपका। भाई ओके सीआईआरपी सर। सीआईआरपी में भी तो साल 2 साल लगता है ना। हाँ सर सही है सर आपने सही है। पुराना ही वैल्यूएशन यूज कर रहे हो, तो उस केस में वो कहता है यू कैन रिड्यूस इट अप टू 25% वंस। ठीक है सर ठीक है ठीक है सर। उससे नीचे आप कर ही नहीं सकते, है ना। ओके डन सर डन। अंडरस्टूड सर अंडरस्टूड डन। अब ये देखिए कि रियल एस्टेट में क्या होता है, लोगों को लालच आ जाता है कि भाई लिक्विडेटर है, मान लो उसी का कोई पार्टनर है। अब एक्स एंड कंपनी डीलिंग इन रियल एस्टेट इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर रियल एस्टेट डिवीजन ऑफ एबीसी लिमिटेड। मिस्टर एक्स, वन ऑफ द पार्टनर्स, इज रिलेटिव ऑफ लिक्विडेटर। अब जो कंपनी लेना चाहती है उसका एक पार्टनर जो है वो रिलेटिव है लिक्विडेटर का।
हो सकता है ना। तो अब बात यह है कि क्या ये कंपनी ले सकती है या नहीं ले सकती। मतलब 29 ये सर, है 29 ये आएगा सर उसमें, मतलब रिलेटेड सर, रिलेटेड पार्टी। आप देखो ना, प्राइवेट सेल की बात कर रहा है। हाँ सर, वो सॉरी ये सर, कह सॉरी रहा सर है कि सर। इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। आप इसको ये यहां देखो ना, हम्म, ये क्या कहता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का परमिशन रिक्वायर्ड है लिक्विडेशन प्रोसेस पे। रेगुलेशन 33, रेगुलेशन 33 में क्या बोलता है, लिक्विडेटर शेल नॉट सेल द एसेट्स विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाय वे ऑफ प्राइवेट सेल टू रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, हिज रिलेटेड पार्टी और एनी प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय हिम। ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक्स एंड कंपनी, एक एक्स एंड कंपनी रियल इसका ये जो, ये कंपनी कौन सी है, एबीसी लिमिटेड, इसका रियल एस्टेट डिवीजन एक हम्म, एक्स वाई जेड एंड कंपनी लेना चाहती है। एक्स वाई जेड में मिस्टर एक्स एक पार्टनर है जो कि लिक्विडेटर का रिलेटिव है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो एक्स एंड वाई है कंपनी, ये ले सकती है रियल एस्टेट डिवीजन या नहीं। अगर ले सकती है तो किसकी परमिशन चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन, यस सर, यस। है ना। तो उसमें ये 30 है कि भाई आप रेगुलर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का परमिशन रिक्वायर्ड है। पक्का सर। अच्छा, एक फिशरीज डिवीजन है। फिशरीज डिवीजन में क्या हो रहा है, ये फिशरीज डिवीजन है हमारा। तीसरी यानी पेरिसेबल इन नेचर वाला। हाँ, पेरिसेबल समझ लो 10 लाख का है और रियलाइजेबल वैल्यू उसकी नील है। हाँ। भाई फिशरीज डिवीजन में क्या होता है, गांवों में तालाब वगैरह बना देते हैं, एक हम्म, फिशरीज डिवीजन है। उसकी वैल्यू हम्म, बुक्स में 10 लाख रुपए है, और जो वैल्यू वैल्यूअर ने वैल्यू की उसकी जीरो करी है। हम्म, ठीक है। तो हम्म। एक आदमी उसको लेना चाहता है 10,000 रुपए में। एक फिशरमैन है, उसने कहा भाई मैं खरीदना चाहता हूं। तो क्या करना चाहिए। ओनर ऑफ प्रॉपर्टी सर। हाँ, तो रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 3 है इसके लिए। रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 3 क्या बोलता है, अगर आपको डिस्क्लेम करना है, डिस्क्लेमर ऑफ ओनर्स प्रॉपर्टी, तो आपको हम्म। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परमिशन चाहिए, बट यस पर इंक्वायर्ड इन राइटिंग। तो अगर इंक्वायर्ड इन राइटिंग है, इसको लगता है भाई देखो जीरो से तो अच्छा ही ना, 10,000 रुपये मिले रहा है, तो दे दे उसको, क्या दिक्कत है। फिर ये वाली पार्ट आप एक बार फिर से क्लेरिफाई करेंगे। द लिक्विडेटर शैल सर्व अ नोटिस टू द फिशरमैन एट लीस्ट 7 days बिफोर हाँ, मेकिंग सो एन एप्लीकेशन फॉर फॉर डिस्क्लेमर। दिस वी हैव टू रीड रेगुलेशन नंबर 10। लेट अस गो टू रेगुलेशन नंबर 10 फॉर दिस। एक बार रेगुलेशन नंबर 10 पढ़ते हैं एंड देन विल कम बैक। हम्म, डिस्क्लेमर ऑफ ओनरस प्रॉपर्टी। हाँ, ये दोबारा इस पर चलते हैं। ये मेरा स्क्रीन नजर आ रहा होगा आपको। रेगुलेशन नंबर 10 पर हम चलते हैं। ये 10 हम्म, हमने हम्म, हम्म, छोड़ा भी हुआ था ना। 10 अब पढ़ा भी नहीं है, अब पढ़ लेते हैं एक बारी। ये है जी भाई, सबसे पहली बात तो डिस्क्लेमर, ये ओनर्स प्रॉपर्टी होती क्या है। ऐसे देखिए, बैलेंस शीट में डिफरेंट टाइप के एसेट्स रहते हैं। लिक्विडेशन में क्या करना है, लिक्विडेशन में आपको उन एसेट्स को बेचना है या किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अगर वो बिक नहीं सकते, है ना। कुछ ऐसे एसेट्स हो सकते हैं ना तो वो बिक सकते, ना कोई उनको लेने को राजी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आपको बुक से तो निकालना पड़ेगा ना, बुक्स तो जीरो करनी पड़ेगी ना आपको। तो उसके लिए क्या करते हो, आप डिस्क्लेम कर देते हो ऐसी ओनरस प्रॉपर्टीज। ओनरस प्रॉपर्टी क्या है कि जिसमें आपको बेसिकली पैसे देने ज्यादा है ना। हजार्डस वेस्ट। हाँ, बेसिकली क्या आता है कि मान लीजिए कोई उसका सर नहीं, उसका डिस्पोजल का एक्सपेंडिचर इज मोर। हाँ,
हाँ, more than the देन द property. वैल्यू। Yes, more than, yes, perfect, sir. हम्म। Unprofitable contract. हाँ पढ़ो सर, पढ़ लो पूरा हाँ, 10 पढ़िए नंबर। पढ़िए पढ़िए, हाँ हाँ हाँ। Regulation number 10 of liquidation, हम्म disclaimer of onerous property, where 1 2 3 4 5 हम्म total 5 है उसमें। हम्म number 1, where any part of the property of a city consists of A B C D. A, land of any tenure burdened with onerous convents, कोवेनेंट्स मतलब ये कि covenants. सपोज आपका लैंड टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, पंचायत का टैक्स वो ज्यादा है। लैंड ऐसी है कोई खरीदना चाह नहीं रहा, आपने पब्लिक नोटिस दिया, कोई लेना नहीं चाह रहा उसको, गांव में सिचुएटेड है ना, हाँ। इस टाइप से। और उसका जो टैक्सेस हैं वो ज्यादा है। या मान लीजिए कोई गड्ढे वाला है लैंड है, समझ रहे हो आप, नाले के पास हम्म। है, कोई लेना नहीं चाहता, वो चीज, वो सारी इस टाइप की लैंड आती है। सही है सर। शेयर्स और स्टॉक्स इन कंपनीज। मतलब ये कि आपका वैल्यू कुछ है नहीं शेयर की, है ना, पेनी कंपनी पेनी स्टॉक। उसकी वैल्यू जीरो है मान लो, तो ऐसे शेयर्स का आप क्या करोगे ये। See any other property which is not sellable or is not readily sellable by reason of the possessor thereof being bound either to the performance of any onerous act or to the payment of any sum of money. हम्म मतलब ये कि प्रॉपर्टी सेलेबल तो है नहीं, है ना, या फिर यह है कि सेलेबल है तो उसमें क्या कुछ ऐसा और पेमेंट करना पड़ेगा, प्राप्ति कुछ होनी नहीं उस को बेचने से, और पेमेंट ज्यादा है, मतलब लेने के बजाय देना पड़ेगा, नेगेटिव में जाएगा मतलब रिजल्ट। समझ रहे हो आप। हम्म भाई कोई भी प्रॉपर्टी आप सेल करते हो तो किस लिए करते हो, कि उससे कुछ पैसे मिलेंगे, पैसे हम स्टेक होल्डर्स को देंगे। अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी सेल करने के बजाय, लेने के बजाय देना पड़ जाए, तो फिर आप तो उसको डिस्क्लेम ही कर दोगे ना, ये पर्पस है, ये मतलब है। या फिर तो इसमें अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, यस। सर डिस्प्यूटेड लैंड आएगी सर, इसमें डिस्प्यूटेड लैंड। डिस्प्यूटेड हो या ना डिस्प्यूटेड हो, जैसे मैंने आपको बताया, नाले के पास सिचुएटेड लैंड ओके है, लैंड कोई ठीक है। ऐसी है गड्ढे में हाँ है, हाँ। कोई लेने को राजी नहीं है उसको। इट्स कॉल्ड ऑर्डिनेंस प्रॉपर्टी सर, या ठीक है फिर सर, ठीक। मान लो कोई टेररिस्ट एरिया है, टेररिस्ट एरिया में लोगों को पता भाई इसके नीचे लैंड माइंस बिछी हुई हैं, कोई लेना नहीं चाहता ऐसी लैंड को। समझ रहे हो आप, वो चीज। हाँ जी, हम्म। चलिए पढ़िए, पढ़िए ना यस नंदन जी। सर, यस सर। डी सर, हम्म डी अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट। हम्म हाँ, डी अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सर, डी अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट। हम्म The liquidator may, notwithstanding that he is endeavored to sell or has taken possession of the property or exercised any act of ownership in relation thereto or done anything in pursuance to the contract, make an application to the AA within 6 months from the liquidation commencement date, or such extended period has may be allowed by the AA to disclaim the property or contract. हम्म। तो अभी अभी तक हमने क्या समझा, पहले तो हमने ये मतलब। समझा कि ओनरस प्रॉपर्टी किस टाइप की प्रॉपर्टी है। वो ऐसी हम्म प्रॉपर्टी है जिसको आपने बेचने की कोशिश की, लेकिन वो बिक नहीं रही है, या उसमें हम्म हमें लेने की बजाय देने ज्यादा पड़ेंगे। ठीक है, आपने कोशिश की बेचने की, और तो आपको डिस्क्लेम करनी है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द लिक्विडेशन, क्योंकि आप खुद तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि भाई मैं ये यस बिकने के यस सर, लायक यस। नहीं है या क्या है। ये तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आप एप्लीकेशन लगाओगे। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी ऐसी प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड हो, जैसे मैंने बताया गांव की प्रॉपर्टी है, या फिशरीज है। फिशरीज में क्या होता है, बेसिकली तालाब टाइप का होता है ना, जिसमें मछली पालन करते हैं लोग। तो कोई फिशरमैन उसमें इंटरेस्टेड हो सकता है। आपकी कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें कोई एग्रीकल्चरिस्ट जो उसी गांव में रहता हो, वो इंटरेस्टेड हो सकता है। आम पब्लिक तो इंटरेस्टेड होगी नहीं उसमें। तो अगर कोई हम्म। इंक्वायरी करता है, तो फिर आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है, ये अगला पॉइंट बताता है। हाँ हम्म।
पढ़िए सेकंड पॉइंट। Second, the liquidator shall not make an application under sub regulation 1 if a person interested in the property or contract inquired in writing in written whether he will make an application to have such property disclaimed and he did not communicate his intention to do so within 1 month from the receipt of such inquiry. Means वो फोन पे कहेगा तो it will not be a onerous contract, sir. हाँ फोन मतलब पे ये इंक्वायरी है, होगा या मिल। हाँ हाँ। मतलब बेसिकली ये है कि किसी आदमी ने इंक्वायरी करा और इसने उसको बताया नहीं विद इन 1 मंथ, तो फिर ये एप्लीकेशन नहीं लगा सकता डिस्क्लेमर की। मतलब ये है कि कोई आदमी इंक्वायरी करता है कि भाई मैंने सुना है आप इस प्रॉपर्टी को डिस्क्लेम करना चाहते हो, मुझे दे दो, मैं खरीद लेता हूँ। जैसे हमने वो फिशरीज वाले एग्जांपल में देखा, उसकी हम्म, वैल्यू एज पर वैल्यूशन नील है, पर एक हम्म, फिशरमैन कहता है बुक्स में वैल्यू 10 लाख है ना, हम्म, और यस। फिशरमैन कहता है भाई मैं 10,000 रुपये में खरीदना चाहता हूँ। इसका मतलब उसने इंक्वायरी करी ना राइटिंग में, तो हम्म, उसने अगर इंक्वायरी करी तो फिर इस प्रॉपर्टी को डिस्क्लेम नहीं कर सकता। क्वेश्चन पॉइंट ये है, सेकंड में ये बताता है। चलिए नेक्स्ट। Perfect. The liquidator shall serve a notice to person interested in the owner's property or contract, means fisherman, at हम्म least 7 days before making an application for disclaim to the double A. हम्म अब इसमें क्या Means होता है कि हम्म, देर आर टू टू टाइप्स ऑफ पीपल। देखो एक तो ये होता है इंक्वायरी तो कोई भी कर सकता है, जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में तो कोई भी कवर्ड है। थर्ड पॉइंट में क्या है, जो इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड कौन है इसको एक्सप्लेन किया गया। ए पर्सन इज इंटरेस्टेड इन द ओनर्स प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट इफ, क्या, हम्म, पढ़िए पढ़िए, इफ ही इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट और सब्जेक्ट टू द बर्डन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट or claims an interest in a disclaimed property or is under a liability not discharged in respect of disclaimed property। मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक मान लीजिए सिनेमा हॉल है, ठीक है, कंपनी के पास सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल हम्म, में एक कैंटीन है। हम्म, अब वो सिनेमा हॉल सिंगल स्क्रीन वाला सिनेमा हॉल है, आजकल कोई खरीदता नहीं है। उसमें भी सिनेमा हॉल कंपनी के पास नहीं है, कंपनी के पास क्या है, सिर्फ लीज होल्ड राइट्स है उस सिनेमा के या डिस्ट्रीब्यूशन के। अब उन डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स की तो आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है ना, सिंगल हम्म, स्क्रीन है, गांव में सिनेमा है। तो अब मान लीजिए उसमें एक कैंटीन भी चलती है। अब हम्म, आप क्या करना चाहते हो, वो जो सिनेमा के लीज होल्ड राइट्स है उनको आप डिस्क्लेम करना चाहते हो क्योंकि कोई खरीदने को राजी नहीं है। तो वो कैंटीन भी हम्म, आप वो उस वो अब वो बंदा कैंटीन वाला कौन हो गया, वो इंटरेस्टेड हो गया। क्यों, क्यों, उसको बेनिफिट है या ही सब्जेक्ट टू द बर्डन। मान लीजिए आपने कैंटीन वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि भाई जब जब तक ये सिनेमा हॉल चलेगा तुम्हें कैंटीन चलानी पड़ेगी, कैंटीन वाले ने अपना सामान वहां रखा हुआ है ना। तो ये मतलब है बेसिकली। तो अगर ऐसा कोई आदमी है हु इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट और सब्जेक्ट टू द बर्डन और ही क्लेम्स एन इंटरेस्ट इन डिस्क्लेम्ड प्रॉपर्टी और इज अंडर लायबिलिटी, तो आपको क्या करना है, उसको भी नोटिस देना है, ये मतलब है। ठीक है, तो दो टाइप के लोग हो गए। एक तो हो गए पर्संस इंटरेस्टेड इन दी प्रॉपर्टी। इंटरेस्टेड इन दी प्रॉपर्टी कौन हो गए, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड में आपने क्या किया हुआ है, किसी किसी एग्रीकल्चरिस्ट को कोई सोइंग राइट्स दे रखे हैं, कल्टीवेशन राइट्स दे रखे हैं, तो वो पर्सन इंटरेस्टेड हो गया। सेकंड पर्सन क्या है, कोई वैसे ही इंक्वायरी कर सकता है जो 10(2) में इंक्लूडेड है। 10(2) में क्या है, सेक्शन रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2, वो तो उसमें कोई भी इंक्वायरी कर सकता है। जैसे जो फिशरीज है, फिशरीज के बारे में एक फिशरमैन ने इंक्वायरी की। 10(3) में कौन आएगा, जो इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड मतलब उस प्रॉपर्टी के साथ उसका कोई लिंकेज है ना। जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चरल लैंड है तो किसी को आपने कल्टीवेशन राइट्स दे रखे हैं तो वो इंटरेस्टेड हो जाएगा। आप कोई सिनेमा हॉल चला रहे हो, उसमें कोई कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर है तो वो इंटरेस्टेड हो जाएगा। तो उसको आपको बताना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं कर सकते ना आप, तो आपको कितने हम्म, दिन पहले बताना है, एटलीस्ट 7 days बिफोर हम्म, मेकिंग एन एप्लीकेशन, ये मतलब है। हम्म, ठीक है जी, चलिए हाँ, फोर्थ, हाँ। फोर्थ पढ़िए। For subject to the order of the AA approving such disclaimer, the हम्म disclaimer shall operate to the disclaim from the date of disclaimer the right, interest, and liability of the CD
in or in respect of the property or contract disclaimed, but shall not accept so far as it is necessary for the purpose of realizing the CD corporate debtor and the property of the corporate from liability affect the rights, interest or liability of any other person. मतलब ये है कि आपने एप्लीकेशन लगा दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि भैया हम इस प्रॉपर्टी को डिस्क्लेम करना चाहते हैं, तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। मोटी बात इसमें ये है। नेक्स्ट। A person affected by the disclaimer under these regulations shall be deemed to be a creditor of the CD for the amount of compensation or damage payable in respect of such effects, and may accordingly be payable as a debt in liquidation under section 53(1)(f). मतलब 53(1)(f). ये है कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि सीडी के पास एक सिनेमा हॉल है, उस सिनेमा हॉल में कैंटीन चलती है। कैंटीन वाला बोलता है भाई तुम सिनेमा हॉल को डिस्क्लेम कर रहे हो, हम सिनेमा हॉल के जो एग्जीबिशन राइट्स है उसको डिस्क्लेम इसलिए कर रहे हैं कि वो सिनेमा हॉल तो चलता नहीं है, तो उसके एग्जीबिशन राइट्स के लिए हमने पब्लिक ऑक्शन किया। वो एग्जीबिशन राइट्स कोई खरीदने को राजी नहीं है। वो कहते हैं हम क्या करेंगे, हम तो 1 रुपए में भी नहीं खरीदेंगे। आपकी बुक्स में वो एग्जीबिशन राइट्स की वैल्यू है, आपने जब खरीदे थे कुछ पेमेंट की होगी आपने, है ना? तो अब वहां से तो निकालना है आपको एसेट से, खरीदने को कोई राजी है नहीं, आपने एप्लीकेशन लगा दी, तो उस केस में आपको जो कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी नोटिस देना होगा। और मान लो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहती है देखो भाई ये कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर ने अपना सामान लगाया था या ये किया था, और तुम्हारा इसके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, अब तुम्हारी कंपनी आ गई लिक्विडेशन में, इसको 2 साल बाद कह रहे हो भाई तुम चले जाओ, है ना? तो इसको भी तुम ऐसा करो 50,000 रुपये दे दो, तो वो 50,000 रुपये के लिए वो 53(1)(f) में क्रेडिटर बन जाएगा। सीडी का मतलब ये है। क्लियर है? हाँ, 53(1)(f) बोले सर, एनी रिमेनिंग डेब्ट हाँ, एंड एनी ड्यूज। रिमेनिंग डेट से मतलब लास्ट में आ जाएगी उसकी प्रायोरिटी। यस, परफेक्ट परफेक्ट सर। सर वो ठीक है। फिशरीज वाला क्वेश्चन आ, हाँ हाँ, हाँ फिशरीज वाला टैप करके। हाँ, ये हम थे यहाँ, हम यहाँ पर थे। ठीक है जी। यस यस, हाँ सर, इसमें क्या वहां था से और कि हमारा 10 लाख रुपए का फिक्स्ड डिवीजन है, और हम्म, वैल्यूअर ने बोली उसकी वैल्यू नील। अब एक हम्म, फिशरमैन उसमें इंटरेस्टेड है, वो बोलता भाई देखो ऐसा है, मैं तो 10,000 रुपये में खरीद सकता हूँ। हम्म, तो इसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज हैं? लिक्विडेटर उसको डिस्क्लेम करना चाहता है, तो उस फिशरमैन को नोटिस देगा। क्यों? क्योंकि उसने राइटिंग में इंक्वायर किया, हम्म, एटलीस्ट 7 days बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिस्क्लेमर। ठीक है, ये मतलब। हम्म, और जो रियल एस्टेट डिवीजन है वो कुछ लोगों ने इलीगली ऑक्युपाई कर लिए हैं, तो उसके बारे में क्या करेगा? भाई कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, उनकी सैलरी पेमेंट नहीं हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, उन फ्लैटों में घुस गए वो। हम्म, तो अब आप क्या करोगे? वो कह रहे भाई मेरी हमारी तनख्वाह नहीं मिली, हम तो इन्हीं फ्लैटों में रहेंगे। तो फिर आप क्या करोगे उस केस में? The डबल liquidator may make an application to हाँ adjudicating हाँ, authority. तो 9(1)(c) है, द लिक्विडेटर में मेक एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर डायरेक्शन दैट ए पर्सन हु हैज पोजेशन एचयूडीटीटी ऑफ एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है। 91C। हाँ, चलिए। अच्छा पर सर इसके लिए व्हाट विल बी द रोल ऑफ डबल ए सर? अभी भाई, लेबर के रोल ऑफ सर जो डबल ए बोलेगा पुलिस वालों को इनको निकालो डंडे मार के। ओके सर, ओके ओके, ठीक है सर। वो लिक्विडेट भी डबल ए का काम है सर। हाँ, ठीक है सर। liquidator feels there is no need to appoint the valuer, but the committee is in favor of valuation. Is it mandatory to get the valuation done in such a situation? भाई देखो ऐसा है, Yes, CIRP में वैल्यूएशन हुआ था। in case he CC passes. हाँ, तो हमारा ये रेगुलेशन 31A(1)(d) बोलता है, 31A(1)(d) क्या बोलता है? 31A(1)(d) बोलता है
कि अगर valuation under section 35 to 35 2 ये 35 में आ जाएगा ना। 35 2 है सर। हाँ, 35(2) क्या बोलता है? 35(2) बोलता है इन अगर केसेस CIRP में वैल्यूएशन नहीं करवाया, या फिर कंसल्टेशन कमेटी ने आपको बोला कि वैल्यूएशन करवाओ, तो फिर आप वैल्यूएशन करवाओगे बेसिकली। और इस केस में क्या होगा? लिक्विडेशन में वो रियलाइजेबल वैल्यू देता है। और थर्ड वैल्यूअर क्या अपॉइंट कर सकते हो? द आंसर इज नो। CIRP में क्या होता है, अगर वेरिएशन है दो में तो आप थर्ड वैल्यूअर भी अपॉइंट कर सकते हो। लिक्विडेशन में क्या है, अगर आपका क्या कहते हैं उसको, अगर मान एवरेज लीजिए 25% से ज्यादा वैल्यूएशन है, तो आप वैल्यूअर को बुलाओगे मीटिंग में और वो एक्सप्लेन करेगा क्यों वैल्यूएशन डिफरेंट है। ये है। सर वो एवरेज के लिए क्या है सर? एवरेज द एवरेज ऑफ टू एस्टिमेट्स रिसीव्ड अंडर सब रेगुलेशन 3 shall be taken as per the value of assets of business. हाँ It हाँ, will be applicable for liquidation or in all process sir. वो तो ये एवरेज कहता का है, फॉर्मूला है वो सर। तो ये कहता है कि भाई आपने So क्या किया टू कि सिग्निफिकेंट। हाँ, दो वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाई, दो वैल्यूअर का हाँ एवरेज हाँ। आप ले लो, बस सीधी बात है। पर सर ये सब पे एप्लीकेबल है सर, जैसे कि CIRP PPIRP की ऑल इट इज नहीं, एप्लीकेबल अलग टू। अलग है वो तो। अभी तो हम जो लिक्विडेशन पढ़ रहे हैं ना, लिक्विडेशन में क्या करेगा कि भाई देखो, वन क्या बोलता है? वन बोलता है CIRP वैल्यूएशन ओके है तो ठीक है, उसी का हम्म एवरेज ले लोगे। वहां भी दो वैल्यूएशन दी होगी ना उसने, हम्म हम्म वहां दो वैल्यूअर अपॉइंट किए होंगे। 35(2) हम्म क्या बोलता है? आपको लगता है वो पुराना वैल्यूएशन हो गया, या स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी बोलती है, या लिक्विडेटर को लगता है कि वैल्यूएशन कराना चाहिए, वैल्यूएशन करवा लो, उनका एवरेज ले लो। अगर दोनों में ज्यादा डिफरेंस है तो वैल्यूअर को बुला लो, वैल्यूअर को पूछो भाई क्यों डिफरेंस है। ये बात है। ओके सर। हम्म लेकिन थर्ड सही है। वैल्यूअर का कोई प्रोविजन नहीं है लिक्विडेशन में। नहीं। ओके सर ठीक है सर। अच्छा, ये सेल स्ट्रेटेजी ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? फॉर्मुलेशन ऑफ सेल स्ट्रेटेजी फॉर सेल ऑफ एसेट्स, स्ट्रेटेजी में इंक्लूड ये आपको बताता है शेड्यूल 1 का। मैंडेटरी सर, मैंडेटरी सर, मैंडेटरी। हाँ, शेड्यूल मैंडेटरी है। वन। हाँ और वो COC का कोई रोल है क्या इसमें? हाँ। COC भी एडवाइस कर सकती है। यस सर, यस यस। अच्छा, लिक्विडेटर को लगता है फिजिकल ऑक्शन से ज्यादा प्राइस मिलेगा, तो क्या फिजिकल ऑक्शन हो सकती है? यस डेफिनेटली सर। ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का परमिशन चाहिए नहीं चाहिए? नो 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 सर, नो। चाहिए। ओके सर। आप शेड्यूल 1 का 1(8) पढ़ो। शेड्यूल 1 का 1(8) क्या बोलता है? इफ द लिक्विडेटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ए फिजिकल ऑक्शन इज लाइकली टू मैक्सिमाइज द रियलाइजेशन, he may sell the asset through a physical auction after obtaining the permission of the adjudicating authority. सही परमिशन है लेना सर, पड़ेगा सही है। adjudicating authority। सही है सर, सही है सर। परफेक्ट। 29 ये वाला इसके लिए हाँ, AA को इन्वॉल्व किया है। ठीक है जी। तो हम्म। ये सारा हमने फिर यहाँ पर भी इसको डाल दिया है, सेल स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। हम्म। हाँ जी, ओके जी, गुड नाइट। आज की सत्संग यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। कल का रखूं सर? आप कल का बोले संडे को वो नहीं बोले सरफेस ही। कल का एक बार ग्रुप में अभी डिस्कस कर नेक्स्ट लेंगे, क्लास विल बी हेल्ड ऑन। ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे एक बारी, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, है ठीक है ना? सर, ठीक है हाँ, सर, थैंक यू इफ पीपल हाँ आर सर। विलिंग वी Good कैन night, डू इट, sir. नो इश्यूज। हाँ जी, Good गुड night. नाइट। हाँ जी, गुड नाइट सर। ओके।